Welcome you all to EdSarthi. So guys, UPSC CSC Prelims 2023 examination is approaching. This video is about how you should prepare for the prelims examination in 4 months. 4-month strategy for the prelims 2023 examination. To discuss this, today we have very one special guest with you. तो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं पहले अपने गेस्ट के साथ आप सभी को. So guys, we have Dr. Shivin Chaudhary with us. He is giving interview this year in 2022 UPSC CSC examination. He cleared the mains examination for the very first time, and earlier he had also cleared the prelims of 2021 examination. This is his mark sheet. He used to score very good in the prelims examination, 115 marks, और कट ऑफ था 87 marks. तो almost 30 marks above the cutoff. So this is a very good score. इसके साथ साथ he also had achieved rank 70 in the NEET 2015. So welcome Shivin to EdSarthi. So tell me what is going on right now in your life, Shivin. Thank you for having me, Varun sir. I'm Dr. Shivin Chaudhary, and I'm sure a lot of you have seen me on YouTube, on my YouTube channel called Clarity for UPSC with Dr. Shivin. I'm awaiting the interview this year. My interview is on 10th March, and I'm very happy to be here with you. All right. So, Shivin अपना YouTube चैनल भी रन कर रहा है, अच्छे से बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहा है. You can also subscribe to his channel Clarity with Dr. Shivin Chaudhary. तो स्टार्ट करते हैं, मेन कंटेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं. देखिए इस सेशन को 4-month स्ट्रैटेजी को 4 पार्ट में हम डिवाइड करने वाले हैं. पहला है हाउ यू शुड रिवाइज थिंग्स, है ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवीजन शुड बी देयर, कैसे उसको स्पेस आउट करना चाहिए. उसके साथ साथ स्टैटिक का क्या रोल है, किस तरीके से स्टैटिक को मैनेज करें. देन करंट अफेयर एंड देन हाउ मेनी टेस्ट एंड हाउ यू शुड प्रैक्टिस द टेस्ट. तो इन 4 इशू को हम इस वीडियो में हैंडल करने वाले हैं. तो शिविन, फॉर द बिगिनिंग, हाउ वन शुड रिवाइज थिंग्स, किस तरीके से 4 महीने में रिवीजन को स्पेस आउट करना चाहिए, कितनी रिवीजन करनी चाहिए. Right. So I think assigning a number to revision will be not a very good strategy. The better way will be to do active recall. Active recall is when we look at the questions and revise rather than rereading the books. Because अगर हम किसी एक सीक्वेंस में चीजें पढ़ते हैं, let's say we are reading article 14, then 15, then 16, then 17, तो हमें याद करना आसान है. But UPSC will not ask like that. UPSC will maybe ask article 14, then article 28, then there will be one question from science and tech, then one from environment. तो हमें रिविजन पे फोकस ऐसे करना चाहिए कि वी कैन हैव अ good active recall strategy. And if we are doing active recall only from the index or only from questions, I think even 2 revisions are enough from this point. From today, 2 revisions till the prelims, provided you have done it in an active manner, not done it in a passive manner where you are just rereading the book, should be enough. Can you elaborate on this active recall thing a little bit more? All right. तो जैसे मैं आपसे अभी पूछता हूँ, what is article 17? Right? आप सबको शायद याद आ जाएगा कि हाँ, it is untouchability because ये फंडामेंटल राइट्स के शुरू में है चैप्टर में. बट इफ आई आस्क यू आर्टिकल 28 एंड 29 तो शायद डिफिकल्टी हो. बट जब हम रिवाइज करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमें ये चीज याद है. इसके साथ में आपसे भी पूछूं कि कॉप 27 में व्हाट वाज द मेन डिसीजन दैट वाज टेकन. So many of you might not be able to realize that it's loss and damage. If I ask you the difference between mRNA and tRNA, you might not be able to tell me right now. But जब आप रिवाइज करोगे तो याद रहता है. इसका रीजन है कि हम रिवाइज एक ऑर्डर में करते हैं, तो हमारा ब्रेन पुरानी चीज से नई चीज लिंक करके याद करता है. Right. बट वेन वी आर डूइंग इट एक्टिवली, रैंडमली, जैसे टेस्ट में होता है, तो आवर ब्रेन इज सपोज टू, इट हेल्प्स इट मेक न्यू कनेक्शंस. कहीं हम एकदम से 2 से नई चीजें कनेक्ट कर लेते हैं एंड इंस्टेंटली हमें याद आता है. सो द नंबर ऑफ रिविजन्स रिक्वायर्ड इज मोर, बट द आउटपुट बिकम्स मच मोर. All right. So I think if I am getting you right, you are saying कि जो क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू जब आप एक्टिव रिकॉल करते हो, जो भी उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो रिलेशनशिप बिटवीन दैट नॉलेज एंड द कॉन्टेक्चुअल थिंकिंग बिकम्स वेरी स्ट्रांग, व्हिच हेल्प यू in recalling the content in the examination very quickly. Correct sir. Sir, actually finally तो हमें questions ही करने हैं, right? We have to see the question and instantly recall. तो वो better होगा अगर we are practicing in that manner only. Retrieval is best when done in the manner it has to be done finally. All right, wonderful. So you are saying कि revision यार जरूरी नहीं है कि बार-बार लक्ष्मीकांत को ही घसीटा जाए, ठीक है ना. उसके साथ-साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी एक अलग तरीके की रिवीजन है ना. तो लेट्स इट ब्रिंग अस टू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट देन, है ना. तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, है ना, तो कितने सेक्शनल टेस्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चन रोज करने चाहिए, व्हाट इज योर थिंकिंग ऑन दैट. करेक्ट. So I have a background in MCQs, as sir has told about my AIPMT rank, but I realize बहुत लोग दे रहे हैं ये टेस्ट जिनका नहीं है बैकग्राउंड MCQs में. So for you I will recommend to do at least 10-20 questions daily and give as many tests as you can. अब टेस्ट कौन से देने हैं? Give the previous year questions first. If you do the PYQs properly, वैसे ही टेस्ट कोई नहीं बना सकता जैसा UPSC बना रहा है. So if you are working with their level, that will be great. तो जितने PYQs हम करेंगे उतना अच्छा रहेगा. And at least 1 or 2 sectional tests, and in the end at least 5 or 6 full length tests. Okay.
यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम देखी है मैंने शिवन, जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि अगर कोई किसी का पहला या दूसरा अटेम्प्ट है तो पीवाईक्यूज चलो बढ़िया है, उसने अभी तक पीवाईक्यूज देखे नहीं है ज्यादा, तो अगर वो बार बार पीवाईक्यू करेगा तो उसको बेनिफिट होगा। लेकिन अगर मान लो किसी का थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है, वो 2 या 3 बार से प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहा है, तो वो पीवाईक्यू ऑलरेडी बहुत बार कर चुका है ना, तो देन व्हाट यू सजेस्ट कि क्या चीजें, किस टाइप के क्वेश्चन उन्हें करना चाहिए, या डेली करंट अफेयर वेबसाइट से कोई जो क्वेश्चन आते हैं क्विज वगैरह, क्या वो प्रैक्टिस करने चाहिए, या फिर एक एक सेक्शन के उठा के स्टैटिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, तो विच वन शुड प्रेफर? Correct. So, if somebody has given already attempts 3 or 4 attempts, तो obviously आप PYQ देख चुके होंगे and आपको आते होंगे। तो better strategy here will be to do subject specific static questions। जैसे सर आपको पता होगा लक्ष्मीकांत की एक खुद की बुक आती है Right. which is objective polity। तो अगर हम वो objective polity वाली बुक से लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस करेंगे, it will help us revise लक्ष्मीकांत much better than just trying to reread it। So it's बिल्कुल। better to do these static questions। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगेन आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग दिस व्यू कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट रैंडम करंट अफेयर क्विज क्वेश्चन, उनसे बेटर है कि स्टैटिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। पॉलिटी में जैसे लक्ष्मीकांत की बुक के आते हैं, इकोनॉमी में एक विवेक सिंह की बुक के 500 क्वेश्चंस है, ऐसे ही हर जगह कुछ स्टैटिक के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे दैट यू शुड प्रैक्टिस, है ना। ये तो हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके बाद टेस्ट की बात करते हैं, है ना। आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली बेसिस पे 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए। एक टेस्ट हो गया कि प्रॉपर आप 2 घंटे बैठ के उस टेस्ट को देते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी टेस्ट यू थिंक वन शुड गिव, सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट? सर राइटली सेड बाय यू, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज डिफरेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक और फंक्शन ये है कि वो आपकी बोरियत कम करता है। व्हेन यू आर रीडिंग थिंग्स फ्रॉम डे टू नाइट, तो बीच में जब आप बोर होते हैं, यू कैन एक्टिवेट योर ब्रेन बाय डूइंग सम क्वेश्चंस। बट टेस्ट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। टेस्ट इज अ फॉर्मल सेटिंग, 2 आवर 100 क्वेश्चन सेटिंग। तो वो एटलीस्ट आप 20 to 25 करिए इफ यू हैव नॉट cleared the prelims before, because you need to get your brain in that activity। और एक और recommendation मैं यहाँ पे दूंगा that you should do it from 9 to 11, जो actually prelims का time है, ताकि आपका brain उस time पे active रहे। ठीक है, तो 20 to 25 टेस्ट वन शुड गिव। Yes, sir. हाउ मेनी फुल लेंथ एंड हाउ मेनी सेक्शनल टेस्ट यू विल सजेस्ट इन दिस? Sir, considering that we have 7 subjects in the prelims, I would suggest maybe 2 tests per subject, so 14 or 15 tests there, and then 10 full length tests towards the end, so that you can, get yourself in the mood। एक और मैं आपको recommendation दूंगा that once you are giving a test, please do a CSAT test also immediately after you have given a GS test, because वहां पे होता क्या है कि हम CSAT में बहुत ज्यादा exhaust होके जाते हैं, और अगर हम exhausted हैं तो हमें CSAT की practice in that exhaustion नहीं होती है, so we can do that also। ठीक है, तो 12 to 14 के आसपास सेक्शनल टेस्ट दीजिए एंड रिमेनिंग 8-10 आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, वुड आल्सो लाइक टू टेक योर ओपिनियन ऑन दैट। मैंने एक प्रॉब्लम क्या देखी है कि काफी सारे लोग ना आखिरी तक सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहते हैं, है ना। दे विल बी लाइक कि सेक्शनल में बिकॉज वन पर्सन इज कंफर्टेबल, आपने इमीडिएटली रिवाइज किया अभी एक हफ्ता और उसके बाद आप कंफर्टेबल फील करते हैं सेक्शनल में, और फुल लेंथ टेस्ट आर मोर चैलेंजिंग, जो 1 महीने पहले पढ़ा है उसको रिकॉल करना है ना। तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है एग्जाम से 2 महीने पहले फोकस ओनली ऑन फुल लेंथ टेस्ट। जब एक बार आपका स्टैटिक का रिवीजन, एक रिवीजन कंप्लीट हो गया, उसके बाद शिफ्ट टू फुल लेंथ टेस्ट, एंड फिर चाहे स्टैटिक का रिवीजन पैरेलली चलता रहे, बट टेस्ट आप फुल लेंथ ही दो। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर आई कंप्लीटली एग्री विद यू। देखो, स्टैटिक टेस्ट इज अ लर्निंग एक्सरसाइज, इट इज नॉट अ टेस्ट रियली। आपने अभी पढ़ा है और आप अभी टेस्ट दे रहे हो, सो यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट। बट फुल लेंथ टेस्ट इज अ टेस्टिंग एक्सरसाइज बिकॉज इट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू देयर। जैसे मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था, आर्टिकल 14, COP 28, and then suddenly come back to mRNA. This is what is going to happen in the prelims, and I completely understand from an aspirant's perspective कि ये scary होता है। मेरे को भी बहुत टाइम लगा था अपना फर्स्ट फुल लेंथ देने में, बट वंस यू स्टार्ट गिविंग इट यू विल रियलाइज कि इससे बेटर कोई प्रैक्टिस नहीं है। राइट, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्किल सेट व्हिच वी आल्सो नीड टू एक्वायर। करेक्ट। ऑलराइट, सो गेटिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सो रिवीजन, एक्टिव रिकॉल। शिविन ने हमें सजेस्ट किया कि नॉट नेसेसरीली कि थ्रू आउट कंटेंट हर बार रीड करना है, एक्टिव रिकॉल भी किया जा सकता है क्वेश्चन के थ्रू। सेकंड थिंग ही सजेस्टेड कि टेस्ट सॉल्व कीजिए, टेस्ट के साथ साथ डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन स्टैटिक के पिक करके उन्हें सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सेक्शनल टेस्ट ही सजेस्टेड अराउंड 12 to 14 सेक्शनल टेस्ट यू शुड गिव, एंड देन उसके बाद मिनिमम 8 से 10 आप फुल लेंथ टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है ना। और लास्ट के 2 महीने में मेजरली फोकस ऑन द फुल लेंथ टेस्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, स्टैटिक। लुक, सबसे पहले द थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क यू कि स्टैटिक में किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, कौन कौन से सेक्शन है ना, जिन सेक्शन को लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सो स्टैटिक में आई वुड से दैट
there are certain things that everybody is going to do well, right? Polity you are going to do well, geography you are going to do well, history you are going to do well. Why? Because there is a certain way to do these things. एक set formula है इन चीजों में. But there are areas like science and tech, there are areas like environment, right? And these areas you are not going to do well because there is no one set source. And yahan, as Varun sir has once told me, you gain the competitive advantage. If you score well in these subjects, science and tech, environment, art and culture, तो आपकी सिली मिस्टेक्स भी वार्ड ऑफ हो जाती हैं. तो यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट करंट अफेयर्स ही है. एंड विद दैट रेलेवेंस आई एम गोइंग टू से स्टैटिक इज द किंग मेकर. ये वरुण सर भी बहुत बार कहते हैं, स्टैटिक इज द किंग मेकर. तो इफ यू कैन इग्नोर अ लिटिल बिट ऑफ करंट अफेयर्स दैट्स फाइन, बट प्लीज डोंट इग्नोर एनी स्टैटिक सब्जेक्ट, स्पेशली द वंस वेयर देयर इज नो वन स्टॉप सॉल्यूशन. बिल्कुल बिल्कुल. सो इसमें एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा मैं, और तेरा ओपिनियन भी लेना चाहूंगा यार, कि पॉलिटी इकोनॉमी यू सेड हर कोई करता है ना, दैट आई एग्री कि हर कोई करता है. पॉलिटी इकोनॉमी सेट नोट्स है, उन्हें रिवाइज करना भी आसान है. बट अभी क्या देखा है रिसेंटली, देख यू वर स्कोरिंग 115 मार्क्स, वो 30 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर है ना, बहुत ही अच्छा स्कोर है. लेकिन लेट्स से कि somebody 87 कट ऑफ जा रहे हैं, somebody स्कोरिंग 82 83 मार्क्स. तो मैंने क्या देखा है, ये वो लोग हैं जो पॉलिटी इकोनॉमी के बिना कुछ इजी क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं, है ना. तो उसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि मैंने क्या देखा है कि पॉलिटी इकोनॉमी का अगर कोई इजी क्वेश्चन आपने गलत किया, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है. कम से कम एग्जाम देने वाले 20,000 लोग होंगे जो इजी पॉलिटी इकोनॉमी गलत नहीं करने वाले हैं. तो इस बारे में क्या ओपिनियन है? सर मुझे लगता है ये जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री जैसे क्वेश्चंस जिसमें जो हम गलत कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज वी आर ट्राइंग टू चेज थिंग्स दैट आर ऑब्सक्योर. अगर आप लक्ष्मीकांत पे स्टिक करोगे तो आप क्यों गलत करोगे इजी क्वेश्चन? होगा क्या कि ये मार्केट ऑफ फियर है. यू विल सी वन क्वेश्चन जो लक्ष्मीकांत में नहीं है, जो कहीं करंट अफेयर्स में नहीं है. टू चेज दैट यू विल स्टडी सो मच कि यार ये यहां से आया था, एंड देन इन चेजिंग दोस ऑब्सक्योर थिंग्स यू विल नॉट डू द सिंपल थिंग्स करेक्टली. प्रीलिम्स का एक फॉर्मूला है, डू द सिंपल थिंग्स राइट एंड गेन सम कंपैरेटिव एडवांटेज. पॉलिटी आप 2 महीने पढ़ो वर्सेस आप 3 महीने पढ़ो, 10 में से 8 या फिर 10 में से 9. आप साइंस एंड टेक को, वो एनवायरमेंट को 1 महीना दे दो, यू विल गेन 5-6 क्वेश्चंस मोर. डू द सिंपल थिंग्स इन ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली. सारे क्वेश्चन के 2 ही मार्क्स हैं, देयर इज नो स्पेशल क्वेश्चन. सो प्रीलिम्स इज डूइंग इजियर थिंग द राइट वे. करेक्ट सर, लाइक यू से. इसके बाद बात करते हैं, देख 2 चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था. यू सेड कि पॉलिटी इकोनॉमी वेरी वंडरफुल थिंग. ही सेड कि इनके क्वेश्चन आप इसलिए गलत कर रहे हैं क्योंकि आप रैंडम चीजों को चेस कर रहे हैं, इसकी रैम लिमिटेड है. जब रैंडम चीजों के दिमाग में डाल लोगे तो लक्ष्मीकांत तो भूलोगे, है ना. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. उसके बाद सेकंड जो सेक्शन है, ये साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, है ना. तो पीपल आर नॉट फॉलोइंग दीज सेक्शन. द पॉइंट व्हिच आई वांट टू टच अपॉन इज, लोग क्या सोचते हैं यार, ये पता है क्यों, किस मेंटालिटी के साथ लोग इन सेक्शन को छोड़ रहे हैं. पीपल आर थिंकिंग कि दीज आर डिफिकल्ट, इनका इनपुट आउटपुट पुअर है ना, कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं लेट्स से साइंस एंड टेक में से, तो ज्यादा से ज्यादा हम 4 कर पाएंगे. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग टाइम टू इट? तो व्हाट इज योर थिंकिंग बिहाइंड दैट? With the risk of sounding a little bit overconfident, in 2021 there were 25 questions from science and tech and environment and I got 23 correct. तो ऐसा तो नहीं है कि इनका आउटपुट कोई खराब है, right? The output खराब कब है? When you only do one current affairs compilation for this and do nothing else. अगर आप सोच लो कि सिर्फ करंट अफेयर्स बेस्ड है, होता क्या है कि we don't even understand the meaning of current affairs. You don't know what DNA is and you are trying to understand chimeric antigen receptor T cell therapy. You are not going to understand it and then you feel it is difficult and then you run away from it. जैसे वरुण सर भी बहुत बार कहते हैं, there is a comfort zone in this exam, right? अगर हम उस अपने comfort zone में रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता रहता है, but you have to get out of the comfort zone, right? अगर कोई PSIR aspirant देख रहा है तो मैं कहूंगा become the person who exited the cave, not the person who is staying in the allegory of the cave and looking only at the phantoms. Great. So that brings us to very important, another interesting discussion, कि ये जो science and tech and environment section शिविन आपने बोला, which people used to think is all about current affair, है ना, but you yourself said कि इनके जो current affair के क्वेश्चन है, वो टॉपिक हो सकता है यूपीएससी ने करंट इवेंट से पिक कराओ, बट उसका जाके वो स्टैटिक पार्ट पूछ रहे हैं. सो दैट ब्रिंग अस टू अनदर इंटरेस्टिंग डिस्कशन कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट इवेंट्स, नॉट करंट अफेयर. इट इज मिस्ड ओवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जो करंट इवेंट हम मैगजीन में पढ़ रहे हैं, उसका कितना इंपॉर्टेंस है, उसको कितना टाइम देना चाहिए लोगों को? Sir, here I would like to give a slightly nuanced answer because there is a different answer for every subject. पॉलिटी की अगर आप करंट अफेयर्स मान लो ना पढ़ो, यू जस्ट इग्नोर इट, तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा. बिकॉज पॉलिटी करंट अफेयर्स आर मेंट, फॉर एग्जांपल कि अभी गवर्नर न्यूज में है या अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था एंड इट्स इन न्यूज, तो यू स्टडी दैट सब्जेक्ट या दैट टॉपिक अ लिटिल बिट मोर विद फोकस, बट दैट डज नॉट मीन कि वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट में उनका रोल है,
बट अगेन विदाउट थियोरेटिकल स्टैटिक बैकिंग करंट अफेयर्स इज यूजलेस. आप छोड़ दो करंट अफेयर्स, डू स्टैटिक एंड पीवाईक्यू, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा. आप 4 साल के करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाओ, यू डोंट नो स्टैटिक, आपका नहीं होने वाला है. Awesome. ठीक है, तो करंट अफेयर में बेसिकली लिमिटेड करना चाहिए, है ना? क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या सजेशन है आपका इन लाइट ऑफ दैट? सो आई थिंक 2-3 कैंडिडेट्स होंगे कैटेगरीज. फर्स्ट होगा कोई जो मंथली मैगजीन पढ़ रहा है, सो आई वुड सजेस्ट यू कंटिन्यू डूइंग दैट. बट मोस्ट जो स्कैर्ड लोग हैं, राइट, हु आर वाचिंग दिस वीडियो आर दोस्त जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं किया है. तो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कैन गो फॉर अ ईयरली कंपाइलेशन, मे बी PT365, मे बी समथिंग एल्स, एंड जस्ट स्टिक विद दैट. No need to go in depth of current affairs. 70 plus questions are from static. Get that right. Current affairs and current affairs भी, as Varun sir has rightly said, have now become contemporary affairs. वो 2-3 साल पुरानी चीजें भी पूछ रहे हैं. अगर आप प्योरली करंट देखोगे, इट इज मे बी 2, 5, 7 क्वेश्चंस. उससे ज्यादा नहीं आ रहे. डोंट चेज दैट, राइट. आप अपने 3-4 महीने मत लगाओ उसके पीछे. बिल्कुल बिल्कुल. 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल वर्क करता है. Correct. 80% ऑफ द क्वेश्चन 20% कंटेंट से आएंगे. मैक्रो करंट अफेयर के इशू अच्छे से कीजिए, ठीक है? Right. सो वंडरफुल डिस्कशन वी हैड विद शिवन. शिवन, you want to add something at the end with respect to this 4-month strategy? We will be bringing more video on different subject strategy as well in the future. If you like this video, then do like in the comment box. Any concluding remarks, Shivan, from your side? At the end, I would just like to put on and like tell you a little bit of perspective with respect to mental health. See, देखो ये एग्जाम टफ है. Ultimately 12,000 लोगों का ही प्रीलिम्स होना है. Somebody is going to fail. Please don't attach your life worth to this exam. I know it's easy to say from my perspective क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ, but I have had this perspective on my YouTube channel ever throughout. So don't attach worth to this. It's just an exam. जाओ, work hard, जाओ दे के आ जाओ, and leave the rest to luck. थोड़ा मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें इनमें. बिल्कुल. All right. So wonderful discussion we had with respect to the 4-month strategy, and these are the 2 YouTube channel that you can look up to. ये वीडियो आप एड सारथी के चैनल पे देख रहे हैं. This is Clarity for UPSC by Dr. Shivin. You can also subscribe to that channel. ठीक है, तो stay tuned for more updates with regards to prelims examination with Dr. Shivin Chaudhary. Thank you very much. Thank you, sir, for having me.